ورلڈ ہسٹری میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ افغان طالبان کون ہیں، طالبان کے عروج، زوال اور اب دوبارہ عروج کی داستان، یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں مکمل جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ سن 2001 میں امریکہ کی قیادت میں غیر ملکی افواج کے افغانستان پر حملہ آور ہونے کے بعد ملک پر طالبان کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے وقت کے ساتھ ساتھ طالبان کی طاقت میں دوبارہ اضافہ ہوا اور اب غیر ملکی افواج کے انخلاء کے آغاز کے چند ماہ بعد ہی اس گروپ نے پھر سے دارالحکومت کابل سمیت افغانستان کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر افغانستان میں برسر اقتدار آنے والے ہیں۔ افغانستان میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے طالبان جنگجوؤں نے گزشتہ 2 ماہ میں جتنے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، اتنا وہ سن 2001 میں اقتدار سے علیحدہ کیے جانے کے بعد سے کبھی نہیں کر سکے تھے۔ طالبان نے 2 دہائیوں پر محیط جنگ کے بعد مئی 2021 سے ایک مربوط طریقے سے دوبارہ افغان فوج کی چوکیوں، قصبوں، بڑے شہروں، دیہات اور صوبائی ہیڈ کوارٹروں کو قبضے میں لینا شروع کیا، اور اگست کے مہینے میں ان کی پیش قدمی میں ایسی تیزی آئی کہ عسکری ماہرین ہوں یا دفاعی تجزیہ کار، وہ سب کے اندازوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے 15 اگست کو کابل میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان سن 2018 میں براہ راست بات چیت کا آغاز ہوا تھا اور فروری 2020 میں دونوں فریقین کے درمیان دوحہ امن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت امریکہ نے افغانستان سے انخلاء کو یقینی بنانے جبکہ طالبان نے امریکی فوجیوں کو حملوں سے بچانے کی ذمہ داری لی تھی۔ طالبان سے یہ وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ وہ اپنے زیر انتظام علاقوں میں القاعدہ یا کسی دوسری عسکریت پسند گروہ کی اجارہ داری قائم نہیں ہونے دیں گے۔ تاہم اس معاہدے کے باوجود طالبان کی جانب سے افغان سیکورٹی فورسز اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ طالبان کا اقتدار تک کا سفر۔ طالبان پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طالب علم کے ہیں، اور یہ سن 1990 کی دہائی میں سوویت افواج کے انخلاء کے بعد پاکستان کے شمالی اضلاع میں طاقتور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر پشتون قومیت کے افراد پر مبنی اس تحریک نے مذہبی مدارس میں سر اٹھایا جنہیں سعودی عرب کی جانب سے امداد دی جاتی تھی، اور جہاں سخت گیر سنی اسلام پر مبنی نصاب پڑھایا جاتا تھا۔ طالبان کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں جس بیانیے کا پرچار کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان علاقوں میں امن کی بحالی اور سیکورٹی یقینی بنائی جائے گی اور اسلامی قانون یعنی شریعہ کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ جنوب مغربی افغانستان سے طالبان نے آہستہ آہستہ ملک کے بیشتر علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا، اور ستمبر 1995 میں انہوں نے ایران کی سرحد سے متصل صوبہ ہرات پر باقاعدہ قبضہ کیا، اور اس سے ایک برس بعد ہی انہوں نے افغان دارالحکومت کابل پر بھی قبضہ کر لیا، اور سوویت یونین کو شکست دینے والے افغان مجاہدین کے بانیوں میں سے ایک برہان الدین ربانی کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ سن 1998 تک طالبان نے افغانستان کے 90% علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ افغان عوام نے سوویت افواج کے انخلاء کے بعد مجاہدین کے اقدامات اور ان کے جانے کے بعد ملک میں ہونے والی خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے طالبان کو خوش آمدید کہا۔ آغاز میں ان کی شہرت کی بڑی وجہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات، لاقانونیت کا خاتمہ اور علاقے میں سڑکوں کے قیام اور اپنا کنٹرول مضبوط بنانے کے لیے تجارت کو بہتر بنانا شامل تھا۔ تاہم طالبان نے اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا آغاز بھی کیا، جیسے قتل کے مجرموں یا زنا کرنے والوں کو سرعام پھانسیاں اور چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنا وغیرہ شامل تھی۔ مردوں کے لیے داڑھی رکھنا جبکہ خواتین کے لیے برقع پہننا لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔
तालिबान ने टेलीविजन, मौसीकी और सिनेमा पर पाबंदी आयद कर दी और 10 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी। तालिबान पर इंसानी हकूक और सकाफती खिलाफ वर्जियाँ करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इसकी एक मिसाल सन 2001 में सामने आई, जब तालिबान ने वस्ती अफ़गानिस्तान में मारूफ बामियान बुद्धा के तारीखी मुजस्मे तबाह कर दिए। अलकायदा की पनाहगाहें दुनिया की तवज्जो सही मानों में तालिबान पर उस वक्त बढ़ी जब न्यूयॉर्क में 9/11 के हमले हुए। तालिबान पर इन हमलों के सरगना उसामा बिन लादेन और इनकी तंजीम अलकायदा को पनाह देने का इल्ज़ाम आयद किया गया। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका की सरबराही में इत्तेहादी ममालिक की अफवाज ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले हफ्ते तक तालिबान को इक़्तिदार से हटा दिया गया। इस वक्त चंद अहम इशहास की तलाश में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिमात चलाई गईं, लेकिन उसामा बिन लादेन, तालिबान के रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर और दीगर सीनियर रहनुमा बच निकलने में कामयाब रहे। अक्सर सीनियर तालिबान कमांडरों ने पाकिस्तान के शहर कोयटा में पनाह ली और वहां से उन्होंने तालिबान को हदायत देना शुरू की। ताहम पाकिस्तान की जानिब से कोयटा शूरा की मौजूदगी पर लाइल्मी का इजहार किया जाता रहा। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की तादाद में इजाफे के बावजूद तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल वापस लिया और फिर इसमें इजाफे करता गया। यूं मुल्क के बेशतर इलाके गैर महफूज हो गए और मुल्क में तशद्दुद 2001 की सतह तक जा पहुंचा। तालिबान ने काबुल पर मुतअद्दिद हमले किए और सितंबर 2012 में ग्रुप ने नेटो के कैंप बेस्टियन अड्डे पर बड़ा हमला किया। सन 2013 में मुज़ाकरात के जरिए अमन के क़याम की उम्मीदें कुछ देर के लिए इस वक्त बहाल हुई थीं जब तालिबान ने कतर में अपना दफ्तर खोला था। ताहम दोनों इतराफ मौजूद आदम एतमाद में इजाफा होता रहा और तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा। अगस्त सन 2015 में तालिबान ने इस बात को तस्लीम किया कि जब उन्होंने मुल्ला उमर की मौत को 2 साल तक छुपाए रखा, जिनकी वफात इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी, इससे अगले महीने ग्रुप के मुताबिक इसने अपने ही मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान हफ्तों पर मुहित लड़ाई का खात्मा करते हुए नया रहनुमा चुना है, यानी मुल्ला उमर के नायब की हैसियत से काम करने वाला मुल्ला मंसूर। इस दौरान तालिबान ने सन 2001 में शिकस्त के बाद से पहली मरतबा एक स्ट्रेटेजिक अहमियत रखने वाले शहर कंदूज का कंट्रोल संभाल लिया। मुल्ला मंसूर मई 2016 में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए और इनके मुतबादिल की हैसियत से हैबतुल्लाह अगवनज़ादा को तालिबान का सरबराह मुकर्रर किया गया और वो आज भी ग्रुप के सरबराह हैं। गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी और अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज की तरबियत और असली की फराहमी पर अरबों डॉलर खर्च किए जाने के बावजूद तालिबान को ख़त्म नहीं किया जा सका और मुल्क के दूर दराज इलाकों में इनकी सरगर्मियाँ जारी रहीं। वो इन इलाकों में अपने आप को मुनज़्ज़म करते रहे और अपनी ताकत में इजाफा करते रहे। मुल्क के जिन इलाकों में इनकी सरगर्मियाँ जारी रहीं और वो जोर पकड़ते रहे, इनमें जनूब और जनूब मगरबी इलाकों के अलावा शमाल में हलमंद, कंधार और अफगान और जाबल के सूबे शामिल थे। जनूब में फरियाब की पहाड़ियों, शमाल मगरब की पहाड़ियों और शमाल मशरक में बदखशां के पहाड़ों में भी तालिबान की सरगर्मियों को नहीं रोका जा सका। सन 2017 में BBC की तरफ से कराए गए तजज़िये से मालूम हुआ था कि तालिबान ने बहुत से अज़ला में पूरी तरह मुस्तहकम हो गए हैं। इस सर्वे से ये बात भी सामने आई थी कि वो मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सरगर्म हैं और हफ्तावार या हर माह हमला करते रहे हैं, जिससे ज़ाहिर होता था कि वो माजी में लगाए जाने वाले अंदाज़ों से ज़्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत हैं। मुल्क की 1.5 करोड़ आबादी, जो मजमूई आबादी का निस्फ हिस्सा है, वो तालिबान के ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों में रहती रही, जहाँ तालिबान खुलम खुला मौजूद थे और मुसलसल सरकारी फोर्सेस पर हमला करते रहते थे।
फरवरी 2020 में होने वाले मुआहदे के बाद एक बरस तक तालिबान ने अपनी हुकूमत अमली तब्दील करते हुए शहरों और फौजी चौकियों पर हमला करने की बजाय टारगेट किलिंग का रास्ता अपनाया और अफगान सिविलियन में दहशत फैलाने की कोशिश की। तालिबान के हमलों का निशाना बनने वालों में सहाफ़ी, अमन को फ़रोग़ देने वाले समाजी कारकुन और ताकतवर ओहदों पर फायज ख़वातीन से यह पता चला कि इनके शिद्दत पसंद नज़रियात में कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ इनकी हुकूमत अमली तब्दील हुई। अफ़गान हकाम की जानिब से बैनुल-अक़वामी मदद के बग़ैर तालिबान का मुकाबला न कर सकने की ख़दशात के बावजूद अमरीका के नए सदर जो बाइडन ने अप्रैल 2021 में ऐलान किया कि तमाम अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान छोड़ देंगी। एक आलमी क़ुव्वत को 2 दहाइयों तक अपने ऊपर हावी न करने वाले तालिबान ने अब तेज़ी से मुतअद्दिद इलाकों का कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया और फिर से यह ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि यह गैर मुल्की अफवाज की गैर मौजूदगी में काबुल में हुकूमत गिराने में कामयाब हो सकते हैं और ये कामयाब हो गए हैं। तालिबान अब पहले से भी ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद हैं और नेटो के अंदाजे के मुताबिक इनके लश्कर में अब 85,000 जंगजू शामिल हैं। तालिबान ने 15 अगस्त तक मुल्क के 34 में से 25 से ज़्यादा सूबों का कंट्रोल संभाल लिया है और मुल्क का कोई भी अहम शहर ऐसा नहीं जहां तालिबान का कब्जा ना हो। इस मरतबा पेशकदमी में तालिबान की तवज्जो शुमाली अफ़गानिस्तान के इन इलाकों पर ख़ास तौर पर रही है जो इनके गुज़िश्ता दौरे इक़्तिदार में इनके ज़ेरे असर नहीं आ सके थे। तालिबान की पेशकदमी अक्सर अफ्रीकन की सोच से ज़्यादा तेज़ भी रही है। जनरल ऑस्टिन मिलर जो अफ़गानिस्तान में अमरीका की सरबराही में मौजूद मिशन के कमांडर हैं ने जून में खबरदार किया था कि मुल्क में बदतरीन खाना जंगी का आगाज़ हो सकता है जो दुनिया भर के लिए खदशे का बायस बन सकती है। अमरीकी खुफिया इदारों की जानिब से किए गए तजियों के मुताबिक अफ़गान हुकूमत अमरीकी अफवाज के इन्हला के 6 माह बाद ही गिर सकती थी, ताहम तालिबान इन्हला की हतमी तारीख से पहले ही काबुल पहुंचकर अपनी हुकूमत बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। मज़ीद ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।